Good morning, students. We will be talking about our new chapter, that is deep water. So we will be beginning up with a new chapter in English, that is deep water. Deep water is written by William Douglas. विलियम डगलस जो हैं वो इसके राइटर हैं. नाउ द चैप्टर विच इज बीइंग गिवन हियर, इट टॉक्स अबाउट फियर, क्या होता है और हाउ टू ओवरकम इट, हाउ टू ओवरकम इट. The chapter is talking about these two important things. Now this fear which our chapter is talking about here, it is fear of death. How closely our narrator has been entangled with death. Moreover, if we proceed in the chapter, we see that the lesson deep water is an excrete taken from O men and mountains. ये पूरा बहुत बड़ा ऐसे टाइप है जिसका एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटा सा एक्सक्रीट हमारे सामने इस चैप्टर के रूप में प्रेजेंटेड है. इफ वी गो फर्दर, हियर द नरेटर ही रिकाउंट्स अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ हिज एंड हाउ was the journey of conquering of his fear of water. यहाँ हमने fear of death लिखा है, death due to water. अब वो एक्सप्लेन कर रहा है किस तरह से उसका जो डर है पानी से, उसको उसने ओवरकम किया. He describes how he was nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter he also expresses that how he overcome that fear. दोनों ही चीज़ जो है नरेटर हम अपनी जर्नी हमको एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है. Initially in the beginning, narrator tells us that when he was very small, बहुत छोटा था वो, लगभग 19 साल का, at that time his father took him to a seashore where he see big huge waves coming and he was very scared of that. But उसके जो फादर हैं वो उसको बिल्कुल मिडल में ले जाते हैं, है ना, बहुत पास ले जाते हैं और एक बहुत बड़ी वेव आ रही होती है जिससे कि डर जाता है विलियम बहुत ज़्यादा. लेकिन उसके फादर जो हैं वो उसको वहीं रखते हैं. बहुत तेज़ वेव आती है एंड ही गोज अप विद दैट वेव and at the time he feels that he is gone, मर गया है वो उससे he could not come out alive from this wave. He hold his dad very tightly, इतना डर जाता है कि बहुत कस के अपने फादर को वो पकड़ लेता है. Later on when that wave goes on, that वो तो चली जाती है वेव, लेकिन डगलस के मन में एक डर छोड़ जाती है हमेशा के लिए पानी से. आफ्टर दैट इंसिडेंट ही वॉज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ वाटर. बहुत ज़्यादा जो है वो डरने लग जाता है पानी से. इन दिस चैप्टर ही एक्सप्लेन्ड दैट हाउ ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. Now the narrator decided to learn to swim because due to that fear he was not even able to enjoy his life. He was so much scared of water that he was not able to participate in any sport activity. वो पानी के पास भी नहीं जाता था, boating, rowing, nothing. He was interested in none. छोटी सी वाटर बॉडी भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी.
So finally he thought that he must overcome that fear. उससे वो बाहर आएगा ही आएगा. So he decided to learn to swim. Now there was a pool. उसके सराउंडिंग में, उसके पास में पूल था. The name of the pool was YMCA pool. It offered him a good opportunity because his mother had, there was a river nearby named Yakima River, and that river was considered quite dangerous. तो उसकी जो मदर है, she on a regular basis used to warn him, उसको warn करती रहती थी कि कैसे भी वो उससे दूर रहे, उस रिवर से दूर रहे. बट YMCA pool was safe for swimming, so he decided that he will start swimming there only. Now if we talk about YMCA pool, what we find that YMCA pool was 2 to 3 feet deep at the shallow end, and when we go towards the other end, depth level, that was only 9 feet. So the chances of drowning is very less. So at the slope was very gradual. 2 फीट से शुरू होके वो डीप में 9 फीट जाता था. तो वो जो स्लोप था, that was also very gradual. Now William Douglas had an aversion to water from the beginning. शुरुआत से ही उसको डर था. अब डर क्यों था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया उसके बारे में. बिकॉज अ वेव स्वेप्ट ओवर हिम. पानी की वेव वो जो है उसको बहाकर ले गई थी. once when he stood at the beach with his father, that wave knocked him down. इसीलिए वो बहुत डरता था. and he was buried under water with that wave, so he was frightened. Now YMCA pool revived those unpleasant memories of childish fear. When he thought to learn to swim again, वो जो पुरानी मेमोरीज थी, those were not good at all. बिल्कुल भी खुश नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी वो मेमोरीज. वो वापस से उसके ऊपर हावी हो जाती है, डगलस के ऊपर. खैर, very confidently he overcome all that and decided to proceed up with his journey. अब क्या होता है, लेकिन YMCA पूल में भी उसके साथ एक बहुत मिस एडवेंचर हैपेंड विद हिम. क्या था वो? द नरेटर ही वॉज ऑल अलोन एट द पूल. बिल्कुल अकेला था. एक दिन वो थोड़ा जल्दी चला जाता है तो बहुत अकेला होता है. एंड एज ही वॉज स्केयर्ड ऑफ वाटर, ही डिड नॉट डेयर टू गो इनसाइड द वाटर अलोन. नोबडी वॉज देयर नियर द पूल. कोई भी नहीं था. ही केम अर्ली. तो वो जो डर इतना ज़्यादा था कि ही डिड गॉट द करेज टू स्टेप डाउन इनटू द पूल अलोन. सो व्हाट he thought of sitting by near the pool with his legs in the water and wait for someone elder to come. तो वो बैठ के क्या है, इंतज़ार करने लगता है कि कोई बड़ा आएगा या ट्रेनर आएगा तो मैं उनके साथ ही पूल में जाऊँगा. So his legs were in the pool and he was sitting at the edge of the pool. इतने में क्या होता है, then came a big bully boy. एक बड़ा बच्चा जो है वो आता है. He was a beautiful physical specimen. क्यों ऐसा कहा गया? Because his build, वो जो आया था बच्चा, उसका जो build था, that was very good. He was very handsome. तो that bully boy misunderstood him with someone else. So he cried. He cried from a distance, "Hi skinny," and then pick him up. उठाता है डगलस को और he tossed him deep into the water. डीप एरा की तरफ उसको टोज कर देता है, फेंक देता है. And Douglas was very thin and lean, we can say, बहुत पतला दुबला है. And
he never liked his swimming costume because in that swimming costume उसकी जो पतली पतली टांगे हैं, हाथ है, ये सब विजिबल है ना, और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये। एनी हाउ वो जो लड़का आता है, he tows him into the deep water. He went at once to the bottom. अब उसको तो आती नहीं है स्विमिंग, डगलस को तो स्विमिंग आती नहीं है, so immediately he went to the bottom. He was frightened, very much frightened, but he decided to make a big jump from the bottom because initially in the beginning it was being told to him by the coach that जितना नीचे आप जाओगे उस पूरे प्रेशर से अपने आप को ऊपर जब आप लाओगे तो क्या होगा, जब आप पूरे प्रेशर से ऊपर लाओगे तो अपने आप आपकी बॉडी ऊपर आ जाएगी एंड यू कैन लेग बीट करके आप सरफेस पे मेंटेन रह सकते हो। इतना जो है वो उसने अब तक सुना था। सो ही डिसाइडेड व्हाइल गोइंग डाउन ओनली, वो 9 फीट जब वो नीचे जा रहा है, एट दैट टाइम ओनली he decided that he will make a big jump and he will come to the surface. बहुत बड़ा जंप लगाएगा और सरफेस तक आ जाएगा। अब क्या होता है, he was thinking that when he will come from the big jump, he will come upstairs, ऊपर की तरफ आ जाएगा to the surface and he would lie flat on the water and finally he would pedal to the edge of the pool. उस वक्त वो नहीं डरा है, जैसे उसको डाला है तो उसको लग रहा है कि मैं ऊपर आ जाऊंगा, लेग बीच करूंगा, लाई हो जाऊंगा और बाहर की तरफ निकल जाऊंगा। अभी तक उसके विजन में ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल क्लियर है। बट क्या होता है, जैसे वो नीचे जा रहा है वो 9 फीट जो हैं, दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, दिस सीम्स मोर लाइक 90 to him. His lungs were ready to burst, फट जाने के लिए, पानी भर जाता है लंग्स में, हवा भर गई है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है क्योंकि अंदर जा रहा है, पानी इनटेक कर रहा है वो, तो he was not able to breathe properly. But when he hit the bottom, he gathered all his strength. He make a great spring upward. लेकिन नीचे की तरफ जैसे उसका जो पैर है वो नीचे पूल की जो बॉटम लाइन है उसको टच करता है, इतने में बहुत ज़ोर से अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके ऊपर की तरफ जंप मारने की कोशिश करता है। He came up rather slowly than that what he had imagined. उसने तो सोचा था एकदम से ऊपर आ जाऊंगा मैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो स्पीड थी of coming up, that was very slow. He opened his eyes but saw nothing but water. In between that journey from bottom to top, ना वो आंखें खोलता है तो देखता है चारों तरफ पानी पानी है। Now he become panic, परेशान हो जाता है बहुत, क्योंकि अभी तक उसके थॉट प्रोसेस में क्या था, उसके थॉट प्रोसेस में ये था कि मैं नीचे जाऊंगा, पैर से जोरदार जंप मारूंगा, ऊपर आ जाऊंगा, आंखें खोला तो कुछ नहीं, पानी पानी, लेकिन and he was suffocating. He was not able to breathe properly. He tried to cry, but no sound came out. बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज that was not audible at all. He swallowed water and get choked. His legs were paralyzed and rigid. बहुत ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, उस चिल्लाने के चक्कर में पानी सारा उसके अंदर चले जाता है, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती है। ग्रेजुअली उसकी जो टांगें हैं वो सुन्न होने लगती हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है उनमें। एंड ही वॉज स्टक्ड अंडर द वाटर बैडली ना, उसको रियलाइज होने लगता है कि बहुत बुरा फंस गया है डगलस, हाउ टू कम आउट वो उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैं यहाँ से बाहर आऊँगा। और मीनवाइल इन दिस जर्नी अ ग्रेट फोर्स पुल्ड हिम अंडर वाटर। ऐसा लग रहा है दैट समथिंग, कोई ताकत है अंदर जो कि उसको नीचे की तरफ खींच रही है।
ही वॉज गेटिंग डिजी, उसको नींद आने लगती है, चक्कर आने लगता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने होश खोने लगता है। ही वेंट डाउन एंडलेसली, देन अ स्ट्राक टेरर seized him. His arms would not move. He tried to call for help, but nothing happened. He sucked for air, but got only water. दोबारा नीचे जाता है, बहुत बुरा कंडीशन है उसकी, लेकिन फिर उसके सोचता है कि एक बार फिर से कोशिश करता हूँ फिर से ऊपर आने की, बट इज ऑल एफर्ट वाज सीज्ड। यूजलेस प्रूव होते हैं उसके सारे एफर्ट जो वो अब तक कर रहा है। ही फेल्ट लाइक स्लीपिंग, ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन, बिल्कुल सोने की इच्छा हो रही है उसकी, सब भूल गया है वो, अब वो बेहोशी की तरफ जा रहा है। व्हेन ही, अब उसको लगता है दिस इज हियर लाइज माई एंड। अब उसको समझ तो नहीं आ रहा मैं बेहोश हो रहा हूँ, उसको तो लग रहा है मेरा जो गला है वो चोक हो गया, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। नाउ ही इज रिलैक्सिंग। अब वो रिलैक्स क्या है? वो रिलैक्स उसको लगता है लाइक आई एम मीटिंग डेथ। एंड ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि डेथ का जो टेरर है दैट इज मोर हॉरिबल, बट डेथ इज वेरी गुड, क्योंकि रिलैक्स हो रहा है वो उस वक्त, बेहोश हो रहा है, सुन्न हो रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है उसको। तो वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जो मौत का डर है वही ज़्यादा बेकार है ना। डेथ इज़ वेरी गुड, डेथ इज़ वेरी स्वीट, ये हमें बताने की कोशिश एट द एंड वो करता है। लेकिन when he woke up, he found himself lying on his stomach beside the pool and he was vomiting. अब जब उसे होश आता है तो क्या मरा नहीं है वो, उसको होश आता है तो वो क्या देखता है कि उसको पूल की साइड पर उल्टा लिटाकर, है ना, they were pressing his stomach and he was vomiting and water is coming out। जब ज़्यादा पानी पेट में भर जाता है तो ऐसे ही हम बाहर निकालते हैं उसको। The chap who threw him in the water, he was saying that he was only fooling him, और कोई और है जो बोल रहा है that the boy was about to die। ये सारी चीज़ें जो हैं they were audible to him, वो सब उससे सुनाई दे रही हैं। अब वो बताने की कोशिश कर रहा है that the bully boy बताने की कोशिश कर रहा है that he mistook him with someone else and he was not aware about this fact कि ये जो छोटा सा बच्चा है इसको स्विमिंग नहीं आती है ना। बट इन सब के चक्कर में और नरेटर हैड नियरली डाइड, हमारे डगलस की कंडीशन इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। आफ्टर दिस इंसिडेंट ही रैन टू द चेंजिंग रूम। जब उसको बैठने लायक होता है वो अंदर जाता है और वहीं बैठ जाता है, डर के दुबक के कोने में वहाँ बैठ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी से डरता है, कुछ कोशिश करता है बाहर निकलने की, फिर और एक इंसिडेंट हो जाता है ना, तो वो बाहर नहीं आ रहा है उस फेयर से। बहुत टाइम बाद शाम को ही स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स हिज होम, वो अपने घर जाता है, चुपचाप बिल्कुल शांत है। घर पहुंचकर ही लाई ऑन हिज बेड एंड क्राइड बैडली, बहुत जोर जोर से रोता है क्योंकि वो डर है जो अब बाहर आ रहा है। बट द फियर ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम, लगातार वो जो डर है वो लगातार उसमें बना हुआ है और उसको डरा रहा है। फॉर मेनी डेज ही वॉज कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड बाय द फियर, ही नेवर वेंट बैक टू द पूल। वो इतना ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम बाद भी पूल पे वापस जाने की जो हिम्मत है वो नहीं कर पाता है। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेदर ही कुड और वेरेवर ही कुड। इतना ज़्यादा डर उसके दिमाग में पानी से बैठ जाता है कि वो हमेशा अवॉइड करता है। क्या अवॉइड करता है? जाना, कहीं भी पानी के आसपास कहीं जाना। Whenever he went near water, that terror would seize him again and again. और आसपास पानी को भी जब वो देखता है, his legs got
paralyzed. That icy horror would grab his heart. So the fear stayed with him as the years rolled by. ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों में या कुछ थोड़े बहुत टाइम में वो उस डर से बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत लंबा टाइम जो है वो उसको लगता है बाहर आने के लिए, डर से, पानी के डर से बाहर आने के लिए उसे बहुत टाइम लग जाता है। ग्रेजुअली जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, सो ही थॉट कि ही मस्ट लर्न स्विमिंग। फिर से एक कोशिश करता हूँ, फिर से उसके दिमाग में ये जो आइडिया है ये आता है। दिस टाइम व्हाट ही थॉट दैट ही मस्ट गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग। अब उसको लगता है खाली स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लेना सफिशिएंट नहीं होगा। आई मस्ट नीड अ ट्रेनर, मुझे एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है स्विमिंग सीखने के लिए, ऐसा विलियम डगलस जो है वो सोचता है, उसके दिमाग में ये चीज़ आती है। नाउ नरेटर ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर, ही वेंट टू अ पूल। उस इंस्ट्रक्टर के साथ वो क्या है, पूल पे जाता है। ही प्रैक्टिस्ड 5 days a week। कितना वो प्लान आउट करता है कि वीक में मंडे टू फ्राइडे वो प्रैक्टिस करेगा एंड सैटरडे एंड संडे वुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑफ डे। सो दिस इज हाउ ही बिगेन स्विमिंग अगेन। अब द जर्नी हाउ ही started to learn swimming is in a very comic way. What he did, a rope attached to the belt went through a pulley. He tied the belt around his tummy. अपनी टमी के अगेंस्ट पूरे चारों तरफ बेल्ट बांधता है, एंड वो जो बेल्ट है that is being attached by a rope to the side of the pool. You have seen the pool, साइड में पोल्स लगे होते हैं चारों तरफ, तो वो जो बेल्ट से बंधी हुई रस्सियाँ होती हैं वो उस कॉर्नर पे बंधी हुई होती है, मतलब डूबने का कोई चांस नहीं है। अगर वो कुछ नहीं कहेगा तो वो लटका रहेगा पानी में, वो बिल्कुल डरेगा नहीं। ऑन ईच ट्रिप क्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक seized him। तो ऐसे धीरे धीरे करके पहले वो पानी में खड़ा रहना सीखा उसने, because the terror which was there in his mind and soul, that was very horrible. He anyhow was not able to overcome that। वो नहीं बाहर आ पा रहा था उससे। तो अब वो पहले तो क्या करता है कि कैसे पानी में मैं खड़ा रहूं, वो सिर्फ ये कोशिश करता है। एंड इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू डिस्पेयर। मतलब 3 महीने का टाइम लगा उसको सिर्फ पानी के साथ खुद को यूज टू करने के लिए। देन ही टॉट द नरेटर हाउ टू पुट हिज फेस अंडर वाटर। जनरली व्हेन वी लर्न स्विमिंग इट टुक अस अ वीक ओनली, बट फॉर लेग बीट एंड टू लर्न हैंड मूवमेंट्स हमारे डगलस को 3 महीने लगे। आफ्टरवर्ड्स ओनली द instructor taught him how to put his face under the water, how to inhale and exhale, how to breathe inside the water, कैसे breathing ले, उसके बाद ये सिखाने की कोशिश करता है। Then he learned how to raise his nose and inhale। और टुकड़ों में in parts he is learning swimming। Initially in the beginning कैसे शुरू करा उसने, सबसे पहले वो सिर्फ पानी में खड़ा रहा, बहुत डर था उसको, वो डर बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद ही टाइड अ रोप इन ऑल द एजेस, थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ। देन ही लर्न ओनली द हैंड मूवमेंट, देन ही लर्न ओनली लेग बीट, देन ही लर्न हाउ टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर, देन ही लर्न हाउ टू एक्सेल एंड इनहेल। तो पार्ट्स में हम देखते हैं ऐसे टुकड़ों में ही लर्न टू स्विम। So he repeated the exercise hundreds of times। अब 100 of time not for the sake of perfection, because उसको इतना डर है
कि वो उसको ही समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे स्विमिंग आ गई है या नहीं आई है ना, वो डर उसके ऊपर ज़्यादा है। लेकिन एट लास्ट ही कॉन्कर्ड हिज फियर। द बेस्ट थिंग इज दैट इन द लास्ट what we saw that Douglas conquered his fear. So the instructor taught him how to kick with his legs. For weeks he did just that only. मतलब एक काम उसने हफ्तों तक किया। At first his leg refused to work. When he started moving his legs, तो हम देखते हैं he explains that his leg stop working. अब leg stop working थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन क्या है, उसको डर इतना है कि वो हिला ही नहीं पा रहा है अपनी टांगों को बिल्कुल भी। बट फाइनली ही वॉज एबल टू कमांड हिज लेग एज वेल एज हिज हैंड्स। हम देखते हैं एंड में वो ये करने के लिए कर लेता है। एट लास्ट द इंस्ट्रक्टर मेड हिम अ रियल स्विमर। तो हम देखते हैं ग्रेजुअली टुकड़ों में स्विमिंग सीखते हुए हमारा जो विलियम डगलस है वो क्या है, वो एक स्विमर बन जाता है। बट ही स्टिल फेयर्ड टू बी लोन इन पूल। लेकिन इन सब के बावजूद वो जो उसने अपने टमी के अगेंस्ट बांधी हुई होती है पट्टी वट्टी, वो सब खोल देता है वो और पूरा स्विमर बन जाता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्टर। लेकिन वो जो डर है इतना ज़्यादा था कि सब कुछ सीखने के बाद भी डगलस को ऐसा नहीं लगता था दैट ही लर्नड टू स्विम। तो वो क्या करता है इसके लिए, वो अभी भी डरता है ना। इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया फिर भी ही स्टिल फियर टू बी अलोन इन द पूल। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अब ये जुलाई तक चलता रहता है ये। अब उसके बाद ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ। एक लेक है वेंटवर्थ, वो वहाँ पर जाता है एंड डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिगर्स आइलैंड। अब इस देखने के लिए टू चेक अप द थिंग्स दैट ही इज एबल टू स्विम और नॉट, ही इज नाउ अ स्विमर और नॉट। वो अलग, वो पूल से बाहर कहीं और ट्राई करता है। तो सबसे पहले वो लेक वेंटवर्थ जाता है, उसके जो कि ट्रिगर्स आइलैंड पे है, और ऊपर डॉक से नीचे जो है वो जंप करता है। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एट आइलैंड। 2 miles तक वो स्विमिंग करता है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक, टू चेक दैट फियर इज स्टिल देयर और नॉट। वो डर अभी भी है या चला गया, ये चेक करने के लिए। द फियर फ्लेड एंड ही स्वैम। नाउ ही वाज हैप्पी अबाउट दिस थिंग कि वो जो डर था उसके मन में वो चला गया है। फाइनली ही हैड फाउंड। वो क्या देखता है कि जो डर है उसका वो चला गया है। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड अलॉन्ग विद दिस वो क्या करता है, वो अब अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता है हमारे साथ। अब वो एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो हमें बता रहा है दैट एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट, इट इज अ यूनिक एक्सपीरियंस। ही फेल्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन हिज माइंड, ही कुड नेवर फॉरगेट इट। वो बताता है हमको कि ये जो डर है मेरा, वो उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। He had a deep meaning for him. He had experienced both the feelings. दो चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की। क्या? द सेंसेशन ऑफ डाइंग, कैसा लगता है, क्या सब फील होता है जब हमें पता होता है वी आर अबाउट टू डाई, हम मरने वाले हैं। जब ऐसा होता है, ऐसी फीलिंग होती है तो कैसा लगता है। और द फियर दैट डेथ कुड प्रोड्यूस, मौत का डर और उसको छू के बाहर आ जाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये हमको वो एक्सप्लेन करता है कि मरते हैं जब कैसा लगता है और मन में वो डर कि अब हम मर जाएंगे, ये कैसे है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत क्लियरली डगलस, वो एक्सपीरियंस बहुत क्लियरली जो डगलस है
वो हमारे साथ शेयर करता है। सो दिस इज हाउ वी सी द जर्नी ऑफ कमिंग आउट ऑफ फेयर ऑफ वाटर और नरेटर हैड शेयर्ड विद अस। ये दोनों चीज़ें नरेटर ने कैसे हमारे साथ शेयर करी है ये हमको पता चलता है। अब हम देखें, समराइज करते हैं चलो एक बार चैप्टर को। कैसे? विलियम डगलस वॉज 10 or 11 year old when he decided to learn to swim। इतने ही साल का है, 10-11 साल का है जब वो डिसाइड करता है कि अब उसको स्विमिंग सीखनी है। द YMCA pool was safe for swimming. This was his own prediction. उसका अपना एक्सपीरियंस ये बोलता है कि YMCA जो पूल है that would be sufficient, स्विमिंग सीखने के लिए बहुत सेफ रहेगा। Now it was, क्यों सेफ रहेगा? It was only 2-3 feet deep at the shallow end and 9 feet at the deep end. तो इसको लगता है कि shallow end पे 2-3 फीट है और deep end पे 9 फीट है, तो the chances of drowning they are very less, वो बहुत कम है। The narrator had an aversion to going in water, एक डर है ना, साइकिक है वो इस चीज़ के बारे में कि पानी से बहुत डरता है। He started, अब वो डर कब शुरू होता है? This started when he was 3 or 4 years old and he went to the seashore along with his father. He stood with his father in the surf when the waves swept over him. He was buried in the water, और तभी से बचपन से वो जो डर है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके दिल दिमाग पर घर कर लेता है। So he developed a fear for the huge waves. He went to the YMCA pool but feared going into the pool alone. So when he started his journey, तो शुरू करता है YMCA pool में, लेकिन डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है पूल में अकेले जाने से, इससे वो डरता है। A big bully of boy tossed him into the deep end of the swimming pool. एक बहुत बुली, लंबी लंबा चौड़ा बच्चा उसको उठा के पूल में पटक देता है। He was frightened and found himself at the bottom. और डर जाता है, देखता है खुद को बिल्कुल बॉटम में पाता है। He grew panically, बहुत पैनिक हो जाता है। He felt suffocating. He tried to cry but no sound came out. क्यों नहीं आई आवाज़? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए वो देखता है कोई भी साउंड जो है वो उसके गले से बाहर नहीं निकलती है। He lost his breath and went down endlessly. 3 बार कोशिश करता है वो नीचे बॉटम को टच करके ऊपर आने की, एंड द जर्नी he described his journey very beautifully. When we go through the chapter, हम बहुत क्लियरली इस चीज़ को समझ पाते हैं कि वो एक मिनट का डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियरली उसने किया है। नीचे जा रहा है, अंधेरा है, टाइल्स बिल्कुल क्लियर उसको दिख रही हैं, कोशिश कर रहा है बाहर आने की, और बहुत होपफुल है कि अभी इस बार तो शायद मैं पहुंच ही जाऊंगा। बहुत होपफुल है, बहुत ब्यूटीफुली सारी जर्नी को उसने एक्सप्लेन हमारे सामने किया है ना। ही जम्प्ड विद ऑल हिज फोर्स बट हिज आर्म्स कुड नॉट मूव। प्रॉपरली स्विमिंग उसको आई नहीं है, उसको ये सारी चीज़ें उसने सुनी हैं। ही क्राइड फॉर हेल्प बट नथिंग हैपेंड। एंड में ही लॉस्ट ऑल होप, बिल्कुल होपलेस हो जाता है। उसको लगता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, कोई मुझे नहीं बचा सकता, अभी मुझे मरना ही पड़ेगा, मुझे मरना ही पड़ेगा, और वो छोड़ देता है सारी कोशिश। ही फेल्ट ड्राउजी एंड एक्चुअली ही वॉज नॉट डाइंग, ही थॉट ही इज डाइंग बट ही फेल्ट ड्राउजी। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, बेहोश हो जाते हैं ना, वो उसमें वो आ गया है। When he came to the senses, he was lying on his stomach beside the pool. He was vomiting. जब उसको होश आता है तो वो क्या देखता है, वो पूल के पास में है और
पेट के बल पड़ा हुआ है और उसके जो और मेड्स हैं वो पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं वॉमिटिंग के थ्रू उसकी। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फेयर gripped his heart and the fear of water started overlapping everything। बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक एक अजीब सा डर 24 घंटे उसके दिमाग पे रहा। वो डर क्या था? था पानी से, वाटर का फेयर था। दिस फेयर स्टेड नॉट ओनली फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू वीक्स, बट इट लास्टेड इन मेनी ईयर्स। बहुत सालों तक इतना ज़्यादा था पानी का डर कि वो किसी भी वाटर एक्टिविटी तक में पार्टिसिपेट नहीं करता था। वो किसी भी पूल के, किसी भी लेक के, किसी भी वाटर बॉडी के, किसी भी चीज़ के पास में नहीं आता था जहाँ पर पानी हो सकता था। फाइनली आफ्टर मेनी ईयर्स, बहुत सालों बाद क्या होता है? ही थॉट टू लर्न टू स्विम। एक इंस्ट्रक्टर के थ्रू, एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेकर उसको लगता है दैट ही मस्ट लर्न टू स्विम, ऐसा उसको लगता है। सो ही हायर्ड वन, वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लेता है। द इंस्ट्रक्टर अटैच अ रोप टू द नरेटर्स बेल्ट। द रोप वेंट थ्रू द पुली। बहुत ध्यान से, बहुत पार्ट्स में, बहुत टुकड़ों में जाकर स्विमिंग हमारा नरेटर जो है वो सीखता है। he held on the end of the rope and it went back and forth, आगे पीछे, up and down, everything he used to learn with that tied rope around his pulley, around his waist। कैसे भी उस रस्सी को कभी खोलने की परमिशन उसने नहीं दी इंस्ट्रक्टर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर होता है। एनी हाउ इंस्ट्रक्टर जो है वो भी बहुत पेशेंट होता है, बहुत ढंग से पार्ट्स में, टुकड़ों में उसको स्विमिंग सिखाता है। सबसे पहले लेग बीट, हैंड मूवमेंट, हाउ टू स्टैंड इन द वाटर, देन हाउ टू पुट योर हेड अंडर वाटर, देन हाउ टू एक्सेल, इनहेल, किस तरह से पानी में आप सांस लेंगे। सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत टुकड़ों में हमारे नरेटर को उसका इंस्ट्रक्टर जो है वो समझाता है, सिखाता है और बताता है। सो जो स्विमिंग a normal person could learn in approximately 1 week or something like that, it took 4 or 5 months for Douglas to learn that swimming. Finally he became a complete swimmer। फाइनली वो complete swimmer बन जाता है। लेकिन when he was able to swim in the pool independently without the help of rope, बहुत बार फिर भी उसको विश्वास नहीं होता है कि मैं स्विमिंग सीख ली मैंने। तो इस बात को करने के लिए वो मतलब he was not satisfied by swimming in the pool only, so he went outside और water bodies की वो तलाश करता है। Once he dived off a dock at the Triggs Island and swam 2 miles across the lake। उस जर्नी में एक बार when he was in the middle of the river, middle of the lake, at that time वो फेयर फिर से उसके ऊपर आता है, लेकिन he smiled and says, "Fear, now I don't have any fear with this." So he conquered his fear of water। दिस इज़ हाउ वो जो ये डर है उसका, पानी से जो उसका डर है उसको ओवरकम करने में जो डगलस है वो कामयाब हो जाता है। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। वी विल बी डिस्कसिंग और NCERT questions। The first question is like what is misadventure that William Douglas speak about। पहला कौन सा मिस एडवेंचर है जिसके बारे में विलियम डगलस हमारे सामने बात करता है। नाउ विलियम डगलस was speaking about the misadventure that he experienced at YMCA pool। तो वो सारा इंसिडेंट जो है that we need to explain that a big bully boy found him alone in the pool and
he throwed him into the water. So because of this misadventure, जो डगलस है he ignored and he was troubled a lot and he was revived with the fear of water. Second question जो है आपका वो है why was Douglas determined to get over his fear of water? क्यों हमारा डगलस जो था वो इतना ज़्यादा डिटरमाइंड था अपने डर को, पानी से जो डर है उसको वापस भगाने के लिए? देखो, द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद हिम फॉर मैनी ईयर्स. बहुत सालों तक जो डगलस है वो इस चीज़ से डरता रहा. Whenever he tried or he enters water, that fear seized him. फिर से वो डर जाता था. Wherever he went, it ruined his joy of boating, fishing, swimming or other water activity. He was not able to perform. So he determined himself कि नहीं, ये जो डर है मुझे इससे बाहर आना ही आना है, और वो उससे बाहर आ भी जाता है. बाहर निकलने में जो है वो कामयाब हो जाता है. डगलस he conquered his fear of water. अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं, जैसे हाउ डिड डगलस डेवलप एन एवर्जन टू वाटर. दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिपल्ड विलियम डगलस, हाउ डिड ही ओवरकम दैट फियर. तो ये पूरा हमें नरेट करना है. लाइक इनिशियली इन द बिगनिंग व्हेन ही वेंट विद हिज फादर इन कैलिफोर्निया इन द बीच, वहाँ से वो वाला इंसिडेंट मेंशन करते हुए हमको YMCA वाला मेंशन करते हुए पूरा बताना है दैट हाउ ही कॉन्कर्ड दैट फेयर. जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ डिड डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग इन YMCA पूल. वी हैव टू नरेट एंटायर इंसिडेंट प्रॉपरली. लाइक YMCA स्विमिंग पूल ऑलवेज रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज ऑफ childish fear in Douglas. It was here when a big bully boy threw him into the swimming pool. कैसे उसने कोशिश करी, he tried to throw himself above the water, and he even didn't try it once only, twice, thrice, till the time he lost his senses. And he was keeping on trying to come out of the water. उसका जो एक्सपीरियंस था that was very difficult. He thought that he is about to die. पूरा डिटेल में अगर ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो हम कट शॉर्ट में बताएंगे, एंड इफ दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन 6 मार्क्स क्वेश्चन तो वी विल डिस्क्राइब द थिंग्स इन डिटेल. बहुत डिटेल व्यू में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे, पूरी तरीके से बताएंगे ना. कहीं भी डिपेंड नहीं रहेंगे ओवर शॉर्टकट थिंग्स. जितना एलोबरेटेड फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द मार्क्स हम समझाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, उतना मार्क्स गेन करने में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.